Hello everyone. Welcome to e-learning platform of agriculture and GK. My name is Jigyasha and today we will be discussing about technology in preservation of food, which is a very important topic for the perspective of FSSI exam and State Food Safety Officer exam. So now, before moving with the video, I want to tell you about these amazing courses curated by agriculture and GK. So if you are preparing for FSSI assistant or FSSI Central Food Safety Officer or Technical Officer, you can enroll for these complete courses available at Agriculture and GK platform. The course price for FSSI assistant is 1500 and for the food safety officer and technical officer it is 1700. But with this coupon code you can avail a discount of 20%. So what all you will get in these complete courses: 6 to 7 ebooks covering your entire syllabus, YouTube class notes, one question bank, 10 full-length mock tests with all India ranking, CBT 1 and 2 full notes, discussion group, and personal guidance. So if you are preparing for these exams and you want your resources other than YouTube, so you can go and enroll for these courses which will help you in your preparation. So now let's get started with the video. Our today's first question is, which of the following techniques is not a membrane processing technology? Reverse osmosis, supercritical extraction, ultrafiltration, माइक्रोफिल्ट्रेशन. तो इसमें से जो कौन सी प्रोसेस है वो मेम्ब्रेन कोई मेम्ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है जिसमें. हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है वो होता है वाटर प्योरिफिकेशन के लिए जो हम यूज करते हैं. रिवर्स ऑस्मोसिस है वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस दैट यूजेस अ पार्शियली परमेएबल मेम्ब्रेन टू सेपरेट आयंस एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर. So it involves membrane, so this can't be our answer. Our next option is supercritical extraction. Supercritical extraction जो है, it is a process of separating the extractant from the matrix using fluids. It doesn't involve membrane. So we will see our other two options as well. Ultrafiltration, microfiltration. So these are the variety of membrane filtration only. So these can't be our answer either. So our answer will be supercritical extraction. It does not involve membrane processing technology. So now moving to the next question. Which of chemical reactions performed under an acoustic field is called? Sonochemistry, sonography, aerodynamics, stoichiometry. So हमें बताना है chemical reactions performed under an acoustic field. किसकी definition है? So this is sonochemistry, or we say ultrasonification. So sonochemistry uses ultrasound waves जो होती हैं उनको यूज होता है sonochemistry में for the food preservation. So it is a method of technology used for the preservation of food using ultrasound waves. Now moving to the next question. Our next question is, which of the following statement are correct? So our statements are: better the medium for growth for the organisms, more heat resistant are the cells or spores. So इट्स सेइंग कि जो हीट रेजिस्टेंस हमारे सेल्स और स्पोर्स में जो हीट रेजिस्टेंट आएगा वो डिपेंड करेगा कि जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए जो हमने मीडियम रखा है, तो जितना बेटर हमारा मीडियम होगा उतनी ज़्यादा वो हीट रेजिस्टेंट होंगे. तो ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है. अब हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन मीडियम may lead to increased heat resistant of the organism. सो जो हमारा ग्लूकोज है मीडियम में उसे हम ऐड करते हैं तो उससे भी हमारी जो हीट रेजिस्टेंट है ऑर्गेनिजम्स की वो इंक्रीज होती है. सो इट्स ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. मैग्नीशियम आयन इज सेड टू डिक्रीज द हीट रेजिस्टेंस ऑफ द बैक्टीरियल स्पोर्स. सो जो हमारे मैग्नीशियम आयन्स होते हैं वो हीट रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं बैक्टीरियल स्पोर्स में.
ये भी हमारी ट्रू स्टेटमेंट हो गई। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। Our right answer is option D. Now moving to the next question. Which of the following statements are correct? Dried spores of some bacteria are harder to kill by dry heat than are those by moist heat. So हमारी ड्राई हीट जो होती है उसमें हॉट एयर का यूज करते हैं हम, जिसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होता है या फिर बहुत ही कम होता है। और मॉइस्ट हीट जो है इसमें हमारा वही होता है कि मॉइस्चर होता है। तो जो हमारे ड्राइड स्पोर्स हैं उनको हम जब ड्राई हीट से किल करते हैं तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एज कंपेरेटिवली टू मॉइस्ट हीट। सो ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट इज microorganisms show maximum resistance against heat during logarithmic phase of their life. No, logarithmic phase में तो वहाँ पर जो है डबलिंग होती है, हमारी जो सेल्स होती हैं उनका काउंट डबल हो जाता है, तो हीट रेसिस्टेंस का तो वहाँ पर कुछ रोल नहीं होता। तो ये हमारी हो गई गलत स्टेटमेंट। Bacterial cell is said to have increased resistance against heat if magnesium ion is present in the culture medium. ये हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है। If magnesium ions is present in the culture media, bacterial cells will have decreased resistance against heat. So this is also a wrong statement. So it can't be all of the above. Our answer will be option A. Dried spores of some bacteria are harder to kill by dry heat than are those by moist heat. So now moving to the next question. Bacterial shows maximum resistance against the heat during. So यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, logarithmic phase, lag phase, late lag phase, decline phase. तो किस फेज में मैक्सिमम रेसिस्टेंट अगेंस्ट द हीट शो करेगा बैक्टीरिया? तो ये हमारा होता है ग्राफ, इसमें इधर हम रिप्रेजेंट करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ एंड ये टाइम, ये होता है ऐसे। सो यहाँ पर मतलब जब भी हम किसी बैक्टीरिया को एक मीडियम में डालेंगे उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करेंगे विच आर नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ। तो जो हमारी पॉपुलेशन है इट एग्जिबिट्स 4 फेजेस ऑफ ग्रोथ। जो हम ग्रोथ कर्व, ये जो हमारा है ग्राफ ग्रोथ कर्व का, इसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हेन वी inoculate our bacteria into a new medium, they don't immediately reproduce and the population size remains constant. So the straight line. So this phase is called lag phase. और इसके बाद में जो हमारा ये फेज है ये होता है logarithmic phase. फिर ये जो हमारा वापस से constant हो जाता है ये होता है stationary phase. एंड इसके बाद ये जो होता है ये हमारा होता है डेक्लाइन फेज। सो जो हमारा ये होता है लैग फेज, तो इसमें ये होता है कि हमारे जो पॉपुलेशन की साइज है वो कांस्टेंट रहती है, बट जो सेल्स हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं एंड इंक्रीज इन देयर सेल साइज। दे आल्सो सिंथेसाइज द एंजाइम्स एंड फैक्टर नीडेड फॉर सेल डिवीजन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ अंडर देयर न्यू एनवायरमेंटल कंडीशन। सो जब वो लैग फेज में यहाँ पे सारी अपनी एंजाइम सिंथेसिस के लिए प्रिपरेशन कर लेती हैं, उसके बाद जब वो यहाँ पर लोगरिथमिक फेज में एंटर करने के लिए तैयार होती हैं, तो ये जो हमारा लेट लैग वाला फेज होता है यहाँ पर हमारी जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो मैक्सिमम रेजिस्टेंट अगेंस्ट द हीट शो करती हैं। ये जो हमारा लेट लैग फेज होता है बिफोर एंटरिंग इनटू लॉग फेज, जहाँ पे उनका जो नंबर है वो डबल हो जाएगा, सेल डिवीजन होगा और जो बैक्टीरियल सेल्स है वो डबल होती चली जाएंगी जब तक उनके पास जो हमारे मीडियम है उसमें न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट नहीं हो जाते, तब तक वो ग्रो करेंगे। उसके बाद जैसे ही हमारे न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो जाएंगे तो उनकी जो ग्रोथ है वो वापस से कांस्टेंट, उनका ग्रोथ रेट और जो डेथ रेट है वो सेम हो जाएगा।
तो वापस से स्टेशनरी फेज, और फिर उसके बाद जब न्यूट्रॉन्स वहाँ पे कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके होंगे तो फिर उनकी जो है सेल प्रोडक्शन, जो सेल डिवीजन चल रहा है वो टोटली स्टॉप हो जाएगा और उनका ग्रोथ रेट इंक्रीज करेगा, तो जो हमारा डिक्लाइन फेज हो जाएगा। सो यहाँ हमारा आंसर होगा बैक्टीरियल शोज मैक्सिमम रेसिस्टेंस अगेंस्ट द हीट ड्यूरिंग लेट लैग फेज। Our answer is option C. Heat resistant mold present in canned fruits. So जो हमारे canned fruits होते हैं उनके अंदर जो heat resistant mold है वो कौन सी होती है? Clostridium botulinum, Bysocalamus fulva, Penicillium notatum, Aspergillus niger. So हमारा आंसर है वो है ऑप्शन बी, Bysocalamus fulva. Right answer will be option B. Heat resistant mold present in canned fruit is Bysocalamus fulva. So now moving to the next question. Which of the following statement are correct? Our first statement is molds are fairly resistant to dry heat. Our option statement 2 is cocci usually are more heat resistant than roads. Our next statement is cells in high lipid content are harder to kill than those other cells. Our option D is all of the above. So यहाँ पे हम एक एक स्टेटमेंट देखते हैं। हमारी जो मोल्ड्स होती हैं वो रेसिस्टेंट टू ड्राई हीट। यस, मोल्ड्स आर फेयरली रेसिस्टेंट टू ड्राई हीट, so this is right answer. Now moving to the next statement. Cocci usually are more heat resistant than rods. So cocci and rods are two different shapes of bacteria. So cocci are more resistant than rods. This is also true. Our next statement is cells in high lipid content are harder to kill than those other cells. So जो हमारी cells होती है जिनका lipid content high होता है, those are a bit difficult to kill than the ones which have less lipid content. So this is also true. So our answer will be all of the above. All these statements are correct. So our answer will be option D. Now moving to the next question. Which of the following is used as the monitor in the pasteurization of milk? So जब हम milk का pasteurization करते हैं to remove the harmful bacteria and increase the shelf life of milk, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी पास्चराइजेशन प्रोसेस जो है, हमने जो मिल्क को हीट किया है उसको पास्चराइज करने के लिए तो वो हमारा पास्चराइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो उसको मॉनिटर करने के लिए हम कौन से एंजाइम का यूज़ करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं बोवाइन फॉस्फेटेज, क्योंकि जैसे ही हमारी पास्चराइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी बोवाइन फॉस्फेटेज एंजाइम जो होती है मिल्क के अंदर वो इनएक्टिवेट हो जाएगी। सो उससे हम मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए, बोवाइन फॉस्फेटेज हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। Now moving to the next question. Which of the following statements are correct? So यहाँ पे हमारे पास 4 statements दी हुई हैं जिसमें से हमें देखनी है कि हमारी कितने statements यहाँ पर correct है। तो हमारे options हैं antiseptic and germicidal substances in substrate increases the heat resistance of the organism. हमारी second statement है cells or spores are most heat resistant in a substrate that is near neutrality. Next is in terms of heat resistance of microorganisms, a change in pH towards acid side is less effective than alkalinity side. तो अब एक स्टेटमेंट देखते हैं। सो जो हमारा एंटीसेप्टिक एंड जर्मिसाइडल सब्सटेंसेस होते हैं सबस्ट्रेट में, वो क्या करते हैं, वो डिक्रीज करते हैं हीट रेजिस्टेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। सो दिस इज false statement. Antiseptic and germicidal substances in substrate decreases the heat resistance of the microorganisms. Next is cells or spores are most heat resistant in a substrate that is near neutrality. So this is true. जो हमारी बैक्टीरियल सेल्स और स्पोर्स होते हैं
वो ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट शो करते हैं जब वो न्यूट्रलिटी के क्लोज होते हैं। So this is correct. In terms of heat resistance of microorganisms, a change in pH towards acid side is less effective. It is opposite. A pH change towards alkaline pH is less effective as comparatively to acidic side. So this is also wrong. It can't be all of the above since two statements are already incorrect. So our answer will be option B. Cells or spores are most heat resistant in a substrate that is near neutrality. Now, the indicator microorganism in case of the pasteurization of milk. सो अभी भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि हम पास्चराइजेशन प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए कौन से एंजाइम लिखते हैं। अभी हमें बताना है कि हमारे जो हम पास्चराइजेशन प्रोसेस करते हैं उसका इंडिकेटर कौन सा यहाँ पे बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया या फंजाई कौन सा होगा। सो आर ऑप्शंस आर कोक्सीला बर्नेटी, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। सो हम जो पास्चराइजेशन प्रोसेस करते हैं वो क्यों करते हैं, वो हम करते हैं टू इनएक्टिवेट कोक्सीला बर्नेटी, क्योंकि ये डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इसके डीएक्टिवेशन के लिए करते हैं हम, ताकि इसको इनएक्टिवेट करके जो है मिल्क से हम इसको रिमूव कर दें, इनएक्टिवेट हो जाएगी। तो उससे जो हमारा मिल्क है वो ज़्यादा टाइम के लिए हम उसको रख सकते हैं, तो उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो इंडिकेटर होगा वो कोक्सीला बर्नेटी हो जाएगा। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए। कोक्सीला बर्नेटी इज द इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म इन केस ऑफ द पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। Our next question is minimal heat treatment of market milk at 62.8 degrees Celsius is 4. So जो हम हीट ट्रीटमेंट देते हैं मार्केट वाले में जो मिल्क आता है हमारा पैकेज मिल्क, उसके लिए हम चार जो है हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनको यूज़ करते हैं। तो उसका जो मेन पर्पस होता है वो वही होता है कि हम जो कोक्सीला बर्नेटी है उसको इनएक्टिवेट कर दें और हमारी जो मिल्क की है वो शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए, और जो वो उसका हार्मफुल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं पास्चराइजेशन से 90% तक किल कर देते हैं, ताकि कुछ भी डिजीज वो आगे कोज ना करे। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट हमें डिस्कस करना है वो करना है 62.8 डिग्री सेल्सियस, और the examiner can simply ask 63. So it can be either 62.8 or 63. So the minimum heat treatment of market milk at 62.8 degrees Celsius is for how much time? It is for 30 minutes. How much? 30 minutes. So our answer will be option C. Now moving to the next question. Minimal heat treatment of market milk at 72 degrees Celsius is 4 at least. और 72 डिग्री सेल्सियस पर कितने टाइम के लिए उसको हीट करना है, तो उसको हम करते हैं फॉर 15 सेकेंड। मिनिमल हीट ट्रीटमेंट ऑफ मार्केट मिल्क एट 72 डिग्री सेल्सियस इज फॉर एट लीस्ट 15 seconds. So our answer is option D. Now the next question is minimal heat treatment of market milk at 137.8 degrees Celsius is for at least. So 137.8 or it can be 138. कितने टाइम के लिए करेंगे, तो इसको हम करेंगे फॉर एटलीस्ट 2 सेकेंड। काफ़ी जगह पे इसको 1 सेकेंड भी दिया हुआ है, बट वो 1 सेकेंड नहीं होता, इट इज़ रिटन एज मोर देन 1 सेकेंड। सो फॉर एटलीस्ट इट इज़ 2 seconds. So right answer is option B. Minimal heat treatment of market milk at 138 or 137.8 degrees Celsius is for at least 2 seconds. So our next question is canning is also sometimes called as appetization, pasteurization, sterilization, cold sterilization. So जो कैनिंग है
उसका हम जो पहले नेम था वो क्या था, वो था एपर्टाइजेशन। जो इसका फादर था कैनिंग का, जिसने कैनिंग को सबसे पहले जिसको ऑब्जर्व किया था इस प्रोसेस को, तो ये उनके नाम पर था। निकोलस एपर्ट जो थे उनके नेम पर ये रखा गया था एपर्टाइजेशन। वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये किया था कि जो फूड था उसको बोटल्स में फिल करके कॉर्क से सील करके एंड देन बॉईल करके, जो हम कैनिंग प्रोसेस में करते हैं। सो एपर्टाइजेशन इज also called as canning. Previously it was known as appetization only. Okay, so our right answer will be option A, appetization. Now moving to the next question. Martin process is based on, जो हमारी मार्टिन प्रोसेस है हमें वो बतानी है वो किस पर बेस्ड है। हाई टेम्परेचर मोर टाइम, हाई टेम्परेचर लेस टाइम, लो टेम्परेचर मोर टाइम, लो टेम्परेचर लो टाइम। सो जो हमारा मार्टिन प्रोसेस है वो क्या है, हम पहले वो देख लेते हैं। सो हम मार्टिन प्रोसेस में करते क्या है, बेसिकली इट इज अ व्हीट स्टार्च production process. In this method, the sterilized food is aseptically filled in pre-sterilized cans, which are subsequently sealed in an aseptic environment. So हम बेसिकली इस मेथड में करते क्या है, जो हमारा कैंड फूड होता है उसको हम स्टेरिलाइज्ड, जो हमारा फूड होता है उसको स्टेरिलाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम जिस कैन में उसको डालते हैं उसको भी स्टेरिलाइज करते हैं, फिर उसको सीलिंग कर देते हैं। एंड दिस मेथड टिपिकली avoids the steps like thermal processing and subsequent cooling of canning. तो यहाँ पर हमारा जो यूजुअली हम करते हैं कैनिंग प्रोसेस में, थर्मल प्रोसेसिंग एंड देन कूलिंग, वो नहीं करते। इसमें जो है हम स्टेरिलाइज मेनली जो हमारा होता है वो स्टेरिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे जो हमारा है ये किस पर बेस्ड है, मतलब इसका प्रिंसिपल जो है टेम्परेचर और टाइम का जो है वो हमें बताना है। तो ये वो काम करता है हमारा हाई टेम्परेचर मोर टाइम। Martin process is based on high temperature more time. So our answer will be option A. Now moving to the next question. Tin can was patented by. So जो टिन कैन है वो सबसे पहले पेटेंट किसने कराए थे? पेटेंट इज लाइक कि वो राइट किसने लिया था कि कोई और उसको मतलब अपने नेम के अंडर यूज ना कर सके। सो पेटेंट किसने कराया था टिन कैन को? अभी हमने डिस्कस किया था कि जो कैनिंग का फादर है वो निकोलस एपर्ट है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, पेटेंट इन्होंने नहीं कराया था, पेटेंट कराया था टिन कैन को पीटर डुरांड ने। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, टिन कैन वाज पेटेंटेड बाय पीटर डुरांड। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ कैनिंग। ये तो हम 2 बार डिस्कस कर ही चुके हैं अभी तक आज की वीडियो में। सो अभी तक सबने गैस कर ही लिया होगा। फादर ऑफ कैनिंग इज निकोलस एपर्ट। तो सबसे पहले इन्होंने ही ये डिस्कवर किया था कि जो हम फूड है उसको बोटल्स में फिल करके जो हमारा कॉर्क होता है उससे क्लोज करके एंड देन हम उसकी बॉइलिंग करके फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। सो इट वाज निकोलस एपर्ट। So our answer is option A. Now moving to the next question. Sea enamels contain. तो हमारे sea enamels क्या होते हैं? तो जो हमारे कैन होते हैं उनकी कोटिंग हम करते हैं सल्फर रेसिस्टेंट लेकर से, उन कैंस को हम बोलते हैं सी इनेमल कैंस। तो उसमें वो क्या कंटेन करते हैं? सी इनेमल कंटेन्स, यहाँ पर ये हमारे ऑप्शंस हैं फेरिक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड। तो ये हमारा होगा ऑप्शन बी, जिंक ऑक्साइड। सी enamels contains zinc oxide. Now moving to the next question. Blank are coated onto the flat sheets of
plate before the manufacture of cans to prevent or slow discoloration or corrosion. So हम फ्लैट शीट्स पर किसको कोट करते हैं ताकि जो हमारा डिस्कलरेशन और कोरोजन प्रोसेस है वो ना हो मैन्युफैक्चरिंग के ड्यूरिंग। तो वो हमने अभी डिस्कस किया था इनेमल्स। जो हमारे इनेमल्स होते हैं हम उनकी कोटिंग करते हैं फ्लैट शीट्स पर to prevent the slow discoloration or corrosion. Now moving to the next question. Dole process is the example of. So पहले तो हम देख लेते कि हमारा डोल प्रोसेस जो है वो होता क्या है। So इसमें जो हम यूज करते हैं वो करते हैं सुपर हीटेड स्टीम का यूज करके हम जो फूड को है वो प्रिजर्व करते हैं। तो इसमें हम बेसिकली करते क्या है, स्टेराइल प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। एक स्टेराइल इंटीग्रिटी जो होती है डोल सिस्टम की उसमें वहाँ पे फिल करेंगे एंड देन स्टेरिलाइज्ड कवर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे एंड सीम्ड ऑन विद अ स्टेरिलाइजर सीमर टू प्रोड्यूस अ क्लीन स्टेराइल एंड सेफ प्रोडक्ट। सो बेसिकली वी यूज सुपर हीटेड स्टीम एज अ स्टेरिलेंट फॉर दिस होल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस that is known as डोल प्रोसेस। तो अभी हमें बताना है कि हमारा जो डोल प्रोसेस है वो किसका एग्जाम्पल है। तो बेसिकली जो हमारा डोल प्रोसेस सिस्टम होता है इट इन्वॉल्व्स स्टेरिलाइजेशन ऑफ लिक्विड फूड्स by rapidly heating them in tubular heat exchangers followed by holding and cooling steps. So it is heat cool fill, क्योंकि पहले हम उन्हें ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर्स में हीट करेंगे फिर उसके बाद हम उनकी कूलिंग करेंगे एंड देन फिल करेंगे। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ हीट कूल फिल। आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेशराइज्ड पैकेज्ड लिक्विड और पेस्ट आर कोल्ड। सो जो हमारे प्रेशराइज्ड पैकेज्ड लिक्विड और पेस्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। बैरोफोल्स, एरोसोल्स, एसीटोनो, बाजेस। तो ये हमारा होता है एरोसोल्स। पास्चराइज्ड पैकेज्ड लिक्विड और पेस्ट्स आर कॉल्ड aerosols. So our answer will be option B. Now moving to the next question. Nitrous oxide represses some. So हमारा जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है वो किसको रिप्रेस करता है, बैक्टीरिया, एल्गाई, फंजाई या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं बैक्टीरिया, एल्गाई, फंजाई, ऑल ऑफ द अबव। सो जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड होता है वो रिप्रेस करता है फंजाई को। किसको? फंजाई को। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाइट्रस ऑक्साइड रिप्रेसेस सम फंजाई। So now moving to the next question. The time of heating at a temperature to cause 90% reduction in count of variable spores is called. So हमें यहाँ पर बताना है कि जो हमारा हीटिंग टाइम है किसी भी टेम्परेचर पर जो हमारा बैक्टीरियल स्पोर है उसकी जो काउंट है उसको 90% रिड्यूस करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस आर डी वैल्यू, एफ वैल्यू, जेड वैल्यू या फिर लीथल रेट। सो वी नो जेड वैल्यू इज द एक्सपोजर टाइम रिक्वायर्ड फॉर द नंबर ऑफ सर्वाइवर्स टू चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ 10 or the time required to achieve a decrease of 1 log cycle in the survivor curve. We can simply say the temperature or radiation dose required to reduce the initial population by 90%. So यहाँ पे हमें बताना है कि हमें 90% रिड्यूस करना है जो हमारा काउंट है, तो उसके लिए जो हमें टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे। और यहाँ पे हमें सिंपली पता है कि टेम्परेचर और रेडिएशन जो चाहिए हमें 90% पॉपुलेशन को कम करने के लिए, इनिशियल पॉपुलेशन का 90% कम करने के लिए, उसे हम जेड वैल्यू बोलते हैं। सो इट साउंड सेम्स 90% रिडक्शन इन काउंट ऑफ वायबल स्पोर्स और 90% रिडक्शन इन इनिशियल पॉपुलेशन।
it is Z value. It is very important, please इसको याद कर लेना, Z वैल्यू, F वैल्यू और D वैल्यू की डेफिनेशंस क्या होती हैं, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है. So moving to the next question, the degree in Fahrenheit required to reduce the thermal death time 10-fold. तो जो हमारा थर्मल डेथ टाइम है उसको 10-fold या फिर 1/10 हम और इन अ वेरी सिंपलर वे बाय 1 डेसिमल उसको रिड्यूस करना है हमारा जो टेम्परेचर है उसको फ़ारेनहाइट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं. हमारे पास ऑप्शंस वही हैं, Z वैल्यू, F वैल्यू, D वैल्यू और लीथल रेट. तो यहाँ पर जब हमारा थर्मल डेथ टाइम की बात होती है तो वो होता है Z वैल्यू से रिलेटेड. इसको ऐसे याद रखेंगे कि जब वो पॉपुलेशन की रिडक्शन की बात करता है तो वो हो गया Z वैल्यू, और जहाँ पे डेथ टाइम जो थर्मल डेथ टाइम है उसको रिड्यूस करने की बात होगी वो हो गया हमारा Z वैल्यू. सो नाउ बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा जो TNMRB का फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनके लिए कंप्लीट कोर्स के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ एक बार डिटेल्स. सो इफ यू हैव अप्लाइड फॉर द TNMRB फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम, we have a complete course for you which includes full study material, 6 ebooks, 1 question bank, test series based on exam pattern with all Tamil Nadu ranking, YouTube class notes, previous year paper, all the quality content. और इस कोर्स का जो प्राइस है it's only 1000 rupees. So you can download the app from Play Store, Agriculture and GK app, or you can also find the link to buy this course from the description box. Okay, now moving to the next question. The time in minute required to destroy the organism in a specified medium at 250. So यहाँ पे उसको किसी भी organism को एक मीडियम में डिस्ट्रॉय करना है एट 250 फ़ारेनहाइट. सो ये हमारा क्या होगा. D वैल्यू अभी हमने डिस्कस किया 90% पॉपुलेशन के रिडक्शन के लिए. Z वैल्यू डेथ टाइम से रिलेटेड. सो अभी वी हैव F वैल्यू और लीथल रेट. सो यहाँ पे जब हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने की बात होती है तो इट इज रिलेटेड टू F वैल्यू. ओके, so the time in a minute required to destroy the organism in a specified medium at 250 is F value. It's option B. So our answer will be option B. Now moving to the next question. F naught value is F value when Z is equal to in degree Fahrenheit. तो जो हमारी F naught की वैल्यू है वो F के इक्वल होगी जब हमारी Z की वैल्यू कितनी होगी. सो ये हमें पता है कि हमारी जो F नोट है इट इज इक्वल टू D वैल्यू एट 250 फ़ारेनहाइट मल्टीप्लाइड टू डिफरेंस ऑफ log of initial population and log of final population. सो जो हमारा F नोट है वो है इज इक्वल टू D वैल्यू एट 250 फ़ारेनहाइट एंड log of our initial population. इसको हम डिनोट करेंगे log A से, और जो हमारी फाइनल पॉपुलेशन है उसको हम डिनोट करेंगे log B से. सो log A माइनस log B, ये जो हमारा डिफरेंस होगा मल्टीप्लाइड विद D वैल्यू एट 250 फ़ारेनहाइट. सो ये हमारा होता है F नोट वैल्यू के इक्वल. तो हमें यहाँ पर बताना है कि हमारी Z वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि हमारी F नोट वैल्यू
हमारे F के इक्वल हो। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है 10, 12, 16, 18। तो ये होगा जब हमारी Z की वैल्यू होगी इक्वल टू 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। It's a conceptual based question, so you need to remember it. F naught value is F value when Z is equal to 18 degree Fahrenheit. The answer will be option D. Moving to the next question. The lethal rate is reciprocal of. So जो हमारा lethal rate है वो किसका reciprocal होता है? Lethal rate reciprocal होता है thermal death time. And who deals with the reduction of thermal death time? Z value. Okay. जो हमारा लीथल रेट है वो रेसिप्रोकल होता है थर्मल डेथ टाइम के। So our answer will be option B. Now moving to the next question. Simple glass tube method is used for the calculation of. So जो हमारा ग्लास ट्यूब मेथड होता है वो हम किसकी कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं? वो हम हमारा जो थर्मल डेथ टाइम होता है, कितने टेम्परेचर पर हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी डेथ हो जाएगी। तो जो हमारा थर्मल डेथ टाइम होता है उसके बेसिस पर हम उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं ग्लास ट्यूब मेथड। So आंसर विल बी ऑप्शन ए। सिंपल ग्लास ट्यूब मेथड इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ थर्मल डेथ टाइम। Now moving to the next question. Growth no growth method is. So जो हमारा ग्रोथ नो ग्रोथ मेथड है वो क्या है? So our options are a method of inoculation, a method for obtaining data and plotting, TDT curve हमारा क्या है? थर्मल डेथ टाइम, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। सो इट इज थर्मल डेथ टाइम कर्व और अ मेथड टू डिटरमाइन द हीट प्रोसेस। सो जो हमारा ग्रोथ नो ग्रोथ मेथड एक्सपेरिमेंट है ये है हमारा अ मेथड फॉर ऑब्टेनिंग डाटा एंड प्लॉटिंग थर्मल डेथ टाइम कर्व, कि हमारा कोई भी जो बैक्टीरियम है स्पेसिफिक बैक्टीरियम उसको हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू किल एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी। Our next question is the method used to determine the heat process. So हम heat process के लिए जो method यूज करते हैं वो कैसा मेथड है? So our options are graphical method, formula method और nomogram method or all of the above. So ग्राफिकल मेथड भी यूज होता है हमारा, फॉर्मूला मेथड भी यूज होता है, नोमोग्राम मेथड भी यूज होता है। सो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ग्राफिकल मेथड में हमारा TDT कर्व आता है, फॉर्मूला मेथड में जो हमारी इक्वेशन होती है वो आ जाती है, नोमोग्राम मेथड में वही जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उसको पूरा डिफाइन करते हैं तो हमारा वो भी आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो है आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। Our correct answer is option D. Now moving to the next question. Which of following can be used for the preservation of breads and baked goods? So जो हमारी बेकरी कन्फेक्शनरीज होती हैं, बेकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके प्रिजर्वेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? नाइट्राइट्स, प्रोपियोनेट्स, बेंजोएट्स, शुगर्स। हमारे ऑप्शंस जो हैं इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोपियोनेट्स। Propionates are used for the preservation of bakery products. Our answer will be option B. Now moving to the next question. Propionates are effective against mold, yeast, bacteria, all of the above. So अभी हमने डिस्कस किया propionates are used as a preservatives for our
बेक्ड प्रोडक्ट्स। सो ये किसके अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं, किसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं? मोल्ड, यीस्ट, बैक्टीरिया या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो हमारा आंसर हो जाएगा मोल्ड, क्योंकि हमारे जो बेक्ड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पर मोल्ड की ग्रोथ बहुत ही जल्दी होती है, तो इसीलिए हम प्रोपिनेट्स का यूज़ करते हैं ताकि वो उनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को प्रिवेंट करें, जिससे हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो डिटेरियोरेट ना हो, उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो सके। सो उसके प्रिजर्वेशन के लिए हम प्रोपिनेट डालते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अभी हमने डिस्कस किया था, इट्स ऑलमोस्ट सेम। प्रोपिनेट्स एक्ट्स एज द प्रिजर्वेटिव्स इन केस ऑफ बेक्ड गुड्स एज दे। हम उनको जो बेकिंग के लिए हम बेक प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए प्रोपिनेट्स को यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव्स। तो हम क्यों करते हैं? तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। एज द इंटरफेयर्स विद द रेस्पिरेशन ऑफ मोल्ड्स, अफेक्ट्स द सेल परमिएबिलिटी, cause desiccation of the cell, और all of the above। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि इट इंटरफेयर्स विद द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द मिल्क, नॉट रेस्पिरेशन। सो ये हमारा हो जाएगा गलत। Our next statement is affects the cell permeability. Yes, that is true. सेल परमेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से हमारी मोल्ड की ग्रोथ की प्रिवेंशन होती है। Cause desiccation of the cell. No, it prevents the desiccation of the cell. तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव तो नहीं हो पॉसिबल, सो यहाँ पर हमारी ए की स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। सो आवर आंसर विल बी प्रोपिनेट्स एक्ट एज द प्रिजर्वेटिव्स इन केस ऑफ बेक्ड गुड्स एज दे अफेक्ट्स द सेल परमेबिलिटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेंजोइट्स कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ। सो जो बेंजोइट्स हैं ये भी हमारे प्रिजर्वेटिव्स की तरह काम करते हैं, और इनको हम किसके प्रिजर्वेशन में यूज़ करते हैं? सो इसको हम यूज़ करते हैं जैम की प्रिजर्वेशन के लिए। बेंजोइट्स कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ जैम एंड जेलीज। सो यहाँ पर हम जैम और जेलीज जो हमारा होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से हम जो बनाते हैं, तो उसमें हम बेंजोइट का यूज़ करते हैं, जेल एंड जेलीज। So our answer will be option B. अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट इज benzoids are effective against microorganism in undissociated form. Sorbates are effective against bacteria. Acetates are effective against mold. या फिर all of the above। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो देखते हैं। जो हमारे बेंजोइट्स हैं वो अनडिसोसिएटेड, दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अनडिसोसिएटेड फॉर्म। ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जो हमारे बेंजोइट्स हैं वो इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट जो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनके लिए इफेक्टिव होते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो ट्रू हो गया। अब हम देखते हैं सोरबेट्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया। तो सोरबेट्स हमारे लेस इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट द बैक्टीरिया, सो हम सोरबेट्स का यूज बैक्टीरियल प्रिवेंशन के लिए नहीं करते। सोरबेट्स एंड बेंजोइट्स आर यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मोल्ड्स। सो हमारी स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी। नाउ जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है एसिटेट्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट मोल्ड। नो, बेंजोइट्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट द मोल्ड। तो ये भी फॉल्स। सो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मस्टर्ड ऑयल इज इफेक्टिव अगेंस्ट सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, फ्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ऑल ऑफ द अबव। सो ये तो हमें पता है कि हमारा जो मस्टर्ड ऑयल है हम जो घर में भी यूज़ करते हैं उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल एक्टिविटीज़ जो है वो शो करता है। इट इज़ एन एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रोडक्ट। सो जो हमारा है ये इफेक्टिव किसके अगेंस्ट होगा? ये हमारा होगा सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी के
कि इट हैज़ एंटी फंगल and antibacterial properties. So it is effective against Saccharomyces cerevisiae. So now moving to the next question. Action of formaldehyde against microorganisms can be best explained by which of the following statements? So जो हमारा formaldehyde का action है microorganisms के अगेंस्ट, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी जो स्टेटमेंट है वो बेस्ट है? सो जो हमारे ऑप्शन है हम वो देख लेते हैं. It acts as coagulant and denaturizer of cell nucleic acid. It reduces the disulfide linkages, forms carbonyl compound, inhibits respiratory mechanism. It affects the cell permeability. It combines with free amino group of the proteins of the cell protoplasm. Injuries to nuclei. So यहाँ पर जो हमारी बेस्ट एक्सप्लेन्ड स्टेटमेंट है फॉर्मल्डिहाइड के लिए, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड का जो मेन रोल है वो यही होता है कि इट कंबाइंस विद फ्री अमीनो ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स ऑफ द सेल प्रोटोप्लाज्म एंड इंजरीज टू न्यूक्लियाई. So this statement explains the action of formaldehyde against microorganisms best. Our answer will be option D. Now moving to the next question. Which of the following acts as bacteriostatic? So जो हमारे bacteriostatics होते हैं ये these are those organisms that prevent the growth of bacteria without actually killing them. Okay. So यहाँ हमें बताना है कि which of the following act as bacteriostatic? Cinnamon aldehyde, ellagic acid, humic acid, all of the above. So जो हमारा cinnamon aldehyde है वो act करता है as a bacteriostatic. It prevents the growth of bacteria but without actually killing the bacteria. Our answer will be option A. Now moving to the next question, we have eugenol, which is bacteriostatic in nature, is obtained from. So जो हमारा eugenol है bacteriostatic है, ये हमें कहाँ से मिलता है? It is obtained from cinnamon, clove, cardamom, cumin. It is obtained from clove bud. तो ये भी पूछ सकता है कि कहाँ से obtain करते हैं clove में. So it is obtained from bud. जो हमारा क्लव का बर्ड होता है उससे. So our answer will be option B. Now moving to the next question. Ethylene and propylene oxide are used in. So जो हमारी ethylene and propylene oxide है उसको हम किसके लिए यूज करते हैं? Sterilization of packaging material, preservation of jam fruits and vegetables, acceleration of ripening of fruits and vegetables, वाइन मेकिंग. सो जो हमारे इथाइलिन एंड प्रोपाइलिन ऑक्साइड्स हैं ये पेनिट्रेटिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेटिव होते हैं. किसी भी मतलब गिवन टेम्परेचर पर इनकी जो पेनिट्रेटिंग एक्टिविटी होती है वो काफ़ी हाई होती है. सो पेनिट्रेटिंग जो इनकी इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई उसका बेस्ट यूज़ कहाँ पॉसिबल? उसका बेस्ट यूज़ पॉसिबल है पैकेजिंग में. सो इसको हम यूज़ करते हैं इथाइलिन एंड प्रोपाइलिन ऑक्साइड को फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल ड्यू टू देयर penetrating powers or properties. So our answer will be option A. Now moving to the next question. Thermophiles are destroyed in the processing of sugar by a combination of heat and. So जो thermophiles हैं उनको हम destroy करते हैं शुगर की प्रोसेसिंग में, तो उसमें हीट के साथ किसको कंबाइन करते हैं? CO2, H2O2, इथाइलिन ऑक्साइड, नन ऑफ द फॉलोइंग. सो बहुत से लोग यहाँ पर CO2 मार्क कर देंगे क्योंकि बहुत जगह हम जब गूगल करते हैं तो कुछ वेबसाइट्स पे वहाँ पे उन्होंने CO2 लिखा है, बट CO2 नहीं होता, वो हमारा होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड. थर्मोफाइल्स हमारे होते हैं हीट लविंग बैक्टीरिया, तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हीट के साथ में हम हाइड्रोजन परऑक्साइड मिक्स करते हैं, इनकी कॉम्बिनेशन से उनको वहाँ पे किल करेंगे. सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा
H2O2 hydrogen peroxide, option B. Now moving to the next question. Blank has been used as the mold inhibitor and as a spray to kill airborne microorganisms. ग्लिसरॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ऑक्साइड या फिर ऑल ऑफ दीज. सो जो हमारे यहाँ पर ऑप्शन है हमें इसमें से बताना है कि कौन मोल्ड इनिबिशन में यूज होता है और एज अ स्प्रे भी जिसको यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए. तो यहाँ पर हमारा जो होता है वो होता है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल. इट इज यूज्ड एज द mold inhibitor and also we use it as a spray to kill airborne microorganisms. So our answer will be option B. Now moving to the next question. Which of the following statements are correct? Cobalt 60 is the most promising for commercial application. Yes, it is true. Higher the charge of the electron, the deeper is the penetration. That is also true. क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा पेनिट्रेशन उतनी डीपर होगी. नेक्स्ट इज एक्स-रेज आर नॉट कंसिडर्ड इकोनॉमिकल फॉर द यूज इन फूड इंडस्ट्री. यस, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सो वी कांट कंसिडर इट इकोनॉमिकल. सिंस all our three statements are true, our answer will be all of the above. Option D. Our next question is blank is the term used to label foods treated with low level ionizing radiation. So जो हम लो लेवल आयोनाइजिंग रेडिएशंस के साथ में जिन फूड्स को ट्रीट करते हैं तो उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं उन फूड्स की लेबलिंग के लिए. हमारे ऑप्शंस हैं पिकोवेव, इरेडिएटेड, रेडियोपेटाइज्ड और ग्रेड. सो जो हमारी टर्म है for the labeling of foods which are treated with low level ionizing radiation, it is pico-waved. So our answer will be option A. Now moving to the next question. Which of the following statements are correct regarding the mode of preservation by low temperature? So यहाँ पे हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू है रिगार्डिंग द मोड ऑफ प्रिजर्वेशन बाय लो टेम्परेचर्स. सो फर्स्ट स्टेटमेंट है लो टेम्परेचर किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय कोएगुलेटिंग द मेम्ब्रेन प्रोटीन. नो, उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, सो इट कांट बी ट्रू. लो टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लोइंग ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दैट इज ट्रू. लो टेम्परेचर की वजह से हमारी जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो स्लो हो जाती है. Next is low temperature increases the lysis of the cell by making small pores on the cell membrane. No, low temperature decreases the lysis of cell by making small pores on the membrane. So it decreases. तो ये हमारी wrong हो जाएगी statement. Next is low temperatures causes mutations in the cell. No, we need a very high temperature to cause mutation in the cell. So it is also false. So our answer will be option B. Now moving to the next question. In the presence of optimal concentration of CO2 or ozone. तो जब हमारा CO2 और ओजोन की जो कंसंट्रेशन है वो हम ऑप्टिमल रखेंगे तो जो हमारा फूड है वो unspoiled रहेगा for longer period or a higher relative humidity can be maintained without harming the keeping quality of food. A high storage temperature can be used without shortening the keeping time of food or all of the above. So अगर हमारी CO2 और ओजोन की जो कंसंट्रेशन वो ऑप्टिमल रखेंगे तो हमारी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, कीपिंग क्वालिटी भी हम मेंटेन कर सकते हैं और ये भी हम अचीव कर सकते हैं हायर स्टोरेज टेम्परेचर को यूज करके कीपिंग टाइम ऑफ फूड को डिक्रीज कर लेंगे. सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्डल टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ। सो यहाँ पर हमें बताना है कि हमारी जो हर्डल टेक्नोलॉजी होती है, हर्डल टेक्नोलॉजी इट कंसिस्ट ऑफ, so it consists of mixture of different preservation techniques. Hurdle technology consists of mixture of different preservation techniques. So our answer will be option B. Rapid cooling of the cells from an optimal temperature to 0 degree Celsius can result in cell death. This is referred to as. So जो हमारी सेल, कोई भी बैक्टीरियल सेल्स, उनकी रैपिड कूलिंग जो हम करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसको, जिसकी वजह से सडन डेथ हो जाएगी, सेल डेथ, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिंस हम उसको 0 डिग्री पर रखते हैं क्योंकि कूलिंग की वजह से वहां पे हो रही है उसकी डेथ, तो ये होता है हमारा कोल्ड शॉक। Our answer will be option B. Now moving to the next question, which of the following are the reasons for the preservation of the food commodity? Availability of foods in off season, increasing the shelf life of the perishable commodity, protect from the food spoilage, all of the above. तो हमें बताया कि हम फूड प्रिजर्वेशन जो करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि उनकी जो हमारा फूड है वो अवेलेबल रहे ड्यूरिंग द ऑफ सीजन, उसके शेल्फ लाइफ इंक्रीज करते हैं जो हमारे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड स्पॉइल से भी प्रोटेक्ट करने के लिए। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फूड प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड commodity is done to make it available even during the off seasons, to increase the shelf life of the perishable food products, and to protect our product from the food spoilage. So our answer will be option D. Our last question for today is, UV light have germicidal effect at the wavelength. So जो UV light हम फूड में यूज करते हैं to kill the germs और harmful bacteria, तो उसके लिए हम कितनी वेवलेंथ पे यूज करते हैं? For food products, or we can say for the food industry purpose, we use UV light at the wavelength 210 to 290 nanometer. So our answer will be option A. So now this is the answer key. So all those people who have enrolled for the complete courses, they will be given the PDF जहाँ पे आंसर्स टिक नहीं किए होंगे, तो आपके रिवीजन के लिए आप वहाँ से कर सकते हो, एंड आप अपना प्रिपरेशन भी चेक कर सकते हो वहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर करके, एंड बाद में आंसर की से अपने आंसर्स टैली करके। सो अगर आपने एनरोल नहीं किया है इन कोर्सेज में और आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो, आपको एग्जाम देना है, तो आप एनरोल कर सकते हो, इससे आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो जाएगी काफ़ी। अब जो हमारा है नेक्स्ट, ये हम देख लेते हैं कि हमारे कौन से कोर्सेज के लिए टेस्ट सीरीज और कोर्सेज अवेलेबल हैं एग्रीकल्चर एंड जीके पर। सो IBPS AFO, UK SSSC AAO, HPPS CEDO, NABARD एग्जाम, JKSSP हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन, OPSC AAO, OPSC AHO, OPSC असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर, UPPCSC असिस्टेंट इंजीनियर एग्रीकल्चर, ICR JRF, ASRB NET, ICR NET, Fisheries exams, Forestry exams, FSSI exam, Tripura FSO, TNMRB FSO, TNPSC AO, AAO, DSSS BSO Horticulture, FCI AGM, Cotton Corporation of India exam. So all the exams related to agriculture can be covered with these courses and test series available at Agriculture and GK. You can download the app from Play Store or visit the website given, and for the free resources you can subscribe to our YouTube channel, and you can join the Telegram channel as well, and you can follow us on Instagram. So that was all for today. Thank you for watching this video.